Okay, yesterday we have discussed that how can we use else with for. Okay, and the idea of else with for was that else part only executes when loop ends normally. So I am writing a note here. Else part of for loop only executes when loop ends normally. ओके, चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं. 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. ये सीरीज बना के दिखाओ जरा मुझे. So you have 2 minutes time and you have to make this series. Yes. Let me complete this. Okay, I am writing it. You just check whether it is similar to the one you have written or not. So since the loop will run up to n, so we don't have the value of n now. So first of all we'll get the value of n. And we are to start from 1, we have to go up to 1, and we can see the interval is 2. So we can start a for loop. One comma n plus 1, the interval is 2, and we can print I. Print I is okay, but if you want to put this in a line, then you can write and is equal to comma. So it will not terminate the line on every print, so you'll have comma in between the numbers, right? Now if I have to do this 1 3 5 7 9, let's wait for a while. So I was saying, if the series is 1 3 5 7 9 up to n terms, right? So something has changed now. Earlier we have to print the series up to n, but here in this example we have to print it up to n terms. What difference we will observe? For example, earlier the value of n was, n is say 20, so this loop will go up to 19, this series will go up to 19. But here in this case, if n is 20, it will go up to 39, because this is to be considered as the first term, second term, third term, fourth term, fifth term. Fifth term is 9, so 20 term will be accordingly 39. How can we say so? If it is fifth, it is double minus 1, 9. 5 ka double 10 minus 1, 9. This is fourth term, 8 minus 1, 7. So if I go up to 20th term, so 20th term will be 39. I have told you one thing, whether it is you have remembered it or not, that whenever we have to make a series up to n terms, we simply run the loop from 1 to n. We do not do any calculation, just make it a point, cram it somehow. This is the fixed point, right? So if a loop is to be written for n number of times, we always start the loop from 1 and always go to n plus 1. No step is to be defined, although we need step of 2, but we will not define it. Before that, we'll take the value of
n obviously. Now what is the job of this loop? Because it is not printing what we want it to print, right? We want it to print 1 3 5 7 9, but the values of I is 1 2 3 4 5. So it is something different. It is not the thing that we want to actually print it. Want to print. So what this loop is doing? So this loop is simply counting. You know, whatever we write after hash, it is considered as comment, so it will not be considered as a part of the program. So this loop is actually not printing anything. This loop is counting, right? Because here counting is to be done and printing is to be done. So two jobs are there. So one job is done by the loop only, and second job we have to do with the program, with a statement in fact. Now what will I do? I'll take k as 1 and I'll print k. Alright, so what will be printed? 1, because k is it the first term that we have to print? Now what next we have to print? Okay, how can we make k3? I want a formula that will make 3 5 5 7 7 9. So what can we do with k? K is equal to k plus 2 and the job is done. Alright, now what we actually doing? We are actually doing k is printing the term, whereas I is counting that how many terms have been printed. So since there are two jobs, two different jobs, that's why cricket. Chalo. So I is counting and k is printing. Is that okay? Let's do a bit complex problem. Yes. Next series. This is 1, 2, 4, 8, 16, 32, so on up to n terms. If you want me to write it, I can write. If you can do it yourself, that will be great. So I am giving some time. Those who are sitting online also, they can try. I have to take k as 1. Alright, and do we have to print this? 1 is to be printed first. Yes. Now what is actually the relationship between the terms? Yeah, among the terms. Every time it is increasing the value, increasing it, being multiplied, we can say by 2. So what we can say, k is equal to k into 2. Alright, let's check this. K is initially 1, then multiplied by 2. What will be the answer? 2. Again multiplied by 2, 4. Again multiplied by 2, 8. Again multiplied by 2, 16. So जितना भी होगा वो आता रहेगा. अब एक बात और समझिए. Is it the only solution of this problem? Is it the only solution? So answer is no. Coming back to this program, the only solution, answer is no. Now what else can be possible? In spite of writing these two statements, can I write print I into 2 minus 1? Check and let me know.
यस ऑब्वियसली के भी चला जाएगा, पर के अगर रखोगे भी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसका कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है। एक्स्ट्रा एक वेरिएबल होगा ऑब्वियसली, बट ऐसे कोई प्रोग्राम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, हाउ मच? 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 2। उसमें से 1 घटा दो, अब अगली बार 2 हो गया। वो 1 2 3 4 5 चल रहा है। 1 का डबल -1 1, 2 का डबल -1 3, 3 का डबल -1 5, 4 का डबल -1 5 का डबल -1। तो एक्चुअली ऐसे जब 20 तक जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे? 39 तक पहुँचेंगे। ऑलराइट, सो ज़रूरी नहीं है कि के लिया जाए हर बार, ये आपके अपने एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे मैनेज करते हो। इज दैट ओके? कैन एनीवन टेल मी द सेम फॉर्मूला? समथिंग लाइक दिस ओनली, आई नीड नॉट टू, आई डोंट वांट टू टेक के। Angel has done this. So she has written print 2i, but what she has to do, she has to start it from 0 to n, or what she can do, she can do this also. Because to make 1 we have to put power as 0, right? Basic mathematics. So what she can do, let's try this. What can be done? What she can do is not the right thing. We have I 1 2 3 4 5, right? And so I minus 1 कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4. Now raise कर दीजिए 2 की पावर, तो ये हो गया हमारा 1, ये 2, ये 4, 8, 16। इज दैट ओके? ओके, नेक्स्ट जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट में नहीं तो हाफ ईयरली में, नहीं तो एनुअल में कंपलसरी आएगा, ठीक है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। ये कभी नाम सुना है फिबोनाची? मैथ्स में है। तो जितनी भी मैथ्स है वो सब कंप्यूटर में है, राइट? जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय मैं C++ पढ़ रहा था, तो फिबोनाची सीरीज अगर आपको याद हो तो फिबोनाची सीरीज होती है आपकी 0 1 1 2 3 5 8 13, और इसको हमें चलाना है n टर्म्स तक। क्लियर? इस सीरीज में रिलेशन ये होता है बच्चों कि लास्ट 2 टर्म्स का सम नेक्स्ट टर्म होता है। जैसे 0 और 1 का सम 1, 1 और 1 का सम 2, 2 और 1 का सम 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13। लेकिन ये जो 2 टर्म्स होती हैं इन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो इन दोनों टर्म्स को कहा जाता है बेस टर्म्स। और ये क्योंकि बेस टर्म्स हैं और इन पे कैलकुलेशन का रूल अप्लाई नहीं होता, तो इनको हमें मानना पड़ता है, इनिशियलाइज करना पड़ता है। और बाकी जितनी भी टर्म्स होती हैं, ये सारी की सारी टर्म्स जो होती हैं ये कैलकुलेटेड होती हैं, इनको सबको कैलकुलेट करना है। तो n टर्म्स हमें जाना है तो हमें पता है लूप हमें कहाँ से चलाना पड़ता है। n टर्म्स जाने के लिए मैं इतना लिख सकता हूँ बच्चों, अगर n टर्म्स जाना है तो जरूरी है 1 से n+1 लिखूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ केवल n? 1 से n+1 इज इक्वल टू 0 से n नहीं होता। 1 से n+1 काउंटिंग में 0 से n होता है कि नहीं होता? चेक करते हैं। n की वैल्यू 3 है, तो 1 से 4 लेस देन 4, 1 2 3,
0 0। सो 1 2 3 3 बार चला, और अगर 0 से 3 चलें, 0 से लेस देन 3, तो कितनी बार चलेंगे? 3 बार ही तो चलेंगे। तो ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा काम कम हो रहा है हमारा, ठीक है? ओके, इट्स नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ओनली, यू कैन राइट इन एनी प्रोग्राम। अब हमारी पहली टर्म है, इसका नाम मैंने रख दिया a, और इस टर्म का नाम रख दिया मैंने b, ठीक है? तो a की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0, और b रखा था जिसका नाम, उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। थोड़ा सा मैं इसको नीचे समझा देता हूँ, फिर लिखेंगे इसका आंसर। सीरीज है 0 1 1 2 3 5 8 13 so on up to n टर्म्स। अब ध्यान से समझना इसको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये a है और ये b है और इसको मैं c मान लेता हूँ, तो c कैसे कैलकुलेट हो रहा है? a प्लस b हो रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हुई। दूसरी चीज़, c कैलकुलेटिव टर्म है ना, वो टर्म है जिसको कैलकुलेट करके निकाला जा रहा है। तो इसका मतलब जब ये कैलकुलेट करना था तो इसको हमने c माना, अब हमें कौन सा कैलकुलेट करना है अगला? तो ये c हो गया। अगर ये c हो गया तो ये कौन हो गया? b। और ये कौन हो गया? a ने वैल्यू किससे ली और b ने वैल्यू किससे ली, और c इन दोनों से कैलकुलेट हुआ है। तो पहली कैलकुलेशन हो गई c इज इक्वल टू a प्लस बी। दूसरी कैलकुलेशन क्या करना है? a ने वैल्यू लेनी है b से, और b ने वैल्यू किससे लेनी है? तो ये तीनों स्टेटमेंट अगर हम प्रोग्रेसिवली चलाते रहें तो हमारी सीरीज बनती रहेगी। कैसे? ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c। प्रिंट मैंने कुछ नहीं किया, प्रिंट अभी डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसका ड्राई रन ले लेते हैं। यू नो द मीनिंग ऑफ ड्राई रन? मैनुअली चेकिंग करना कि हमारा प्रोग्राम का एल्गोरिथम सही है कि नहीं। अब इसी से डिसाइड करेंगे कि प्रिंट करना क्या है। तो मेरे पास हुआ a b c। 5 मिनट ध्यान यही रखना अपना, 2-3 मिनट। a b c, a की वैल्यू कितनी है? b की, जोड़ दो दोनों को और c में डाल दो। अब a वैल्यू लेगा b से, मतलब यहाँ पे 1 कर दूँ मैं, और b वैल्यू किससे लेगा? तो यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ। अब इन दोनों का फिर से सम कर दो। अब फिर इसको वैल्यू दिलाओ इधर, और इससे दिलाओ इधर। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? जोड़ के फिर से ऐसा ही करो। फिर 3 हो गया इधर, इधर 5 हो गया। इनमें से कौन सी फिबोनाची सीरीज है? ये या ये? मैच करो जरा। ए है यार। सीरीज कहाँ से शुरू हुई थी? फिर 1, फिर 1, फिर 2, 3। पहली टर्म यही है 0, दूसरी टर्म ये, तीसरी टर्म ये, चौथी टर्म, पांचवी टर्म। तो सीरीज हुई ए। यानी प्रिंट किसे करेंगे? वो यहाँ पे करेंगे बच्चों, ऊपर नीचे नहीं कर सकते क्योंकि बाद में ए की वैल्यू चेंज हो रही है। एक और बात, एक्चुअली बी भी फिबोनाची सीरीज है और एक्चुअली सी भी फिबोनाची सीरीज है। पर अगर मैं बी को फिबोनाची मानता हूँ तो इससे पहले 1 0 मुझे लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से, क्योंकि इसमें 0 मिसिंग है और इसमें सारी कैलकुलेटेड टर्म्स हैं, तो इसलिए 0 और 1 मुझे पहले दिखाना पड़ेगा। अब अगर मैं 0 और 1 को पहले दिखाऊंगा यहाँ पर, तो मुझे इसको n-2 तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 टर्म तो ऑलरेडी मैंने दिखा दी। और इसी तरह अगर मैं इसको b को प्रिंट करता हूँ तो मुझे n-1 तक जाना पड़ेगा, राइट? तो ये हमारी फिबोनाची सीरीज है। एक होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना। ज़ीरो 1 1 2 4 7 13
24 up to n terms. कोई अगर लॉजिक क्रैक कर सके अभी तो इट विल बी ग्रेट.